अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई। तेलंगाना के वजीर KTR ने ट्वीट के जरिए जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल। इसे BJP के मियारात की एक और गिरावट करार दिया। वजीर KTR ने मजमूई तौर पर 1100 करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट्स का रखा संग बुनियाद। जिनोमी वैली में तरक्की के तीसरे मरहले का किया ऐलान। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर T. अंजय्या की 36वीं बरसी। कांग्रेस कायदीन ने हैदराबाद में वाक़ उनके मुजस्समे पर पेश किया खिराज अक़ीदत। भैंसा के जिला परिषद सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में बुनियादी सहूलतों का फुक़दान। तालिबात ने रियासती हुकूमत से सहूलतों की फरहमी का किया मुतालबा। उप्पल में पेश आए एक पुजारी बाप और बेटे के दोहरे कत्ल का मुअम्मा हल। राचाकोंडा पुलिस ने किया 5 अफराद को गिरफ्तार। फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन का मामला। राचाकोंडा पुलिस ने गैंग के 5 अफराद को किया गिरफ्तार। फेक डॉक्यूमेंट्स, स्टैम्प पेपर्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स और दीगर अशिया जब्त। और अब खबरों की तफसील। बिल्किस बानो के खातियों की रिहाई को मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरी पर तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने तंजिया तौर पर कहा कि ये एक चौंका देने वाली बात है। KTR ने इस ज़िमन में ट्वीट करते हुए कहा, सियासी फ़ायदे के लिए असमत दरी करने वालों और बच्चों के कातिलों को रिहा करना BJP के काफ़ी गिरते हुए मियारात में एक और गिरा हुआ मियार है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने लाइफ साइंसेस क्लस्टर जिनोमी वैली में तरक्की के तीसरे मरहले का ऐलान करते हुए मजमूई तौर पर 1100 करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा, जिसके जरिए 3000 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। इन प्रोग्रामों में रियासत के अहम इक़दाम बायो फार्मा हब भी शामिल है, जिसका मकसद बायो फार्मा के शोबे पर असरअंदाज होना है। They're doing some remarkable work, and this new facility is part of a $8 million expansion plan of Yapan and Piramal. It will focus on development of novel vaccines and biologics, biotherapeutics, and other niche areas, including gene therapy products for global biotechnology and biopharma companies. I recently had the pleasure of inaugurating the Center for Excellence of German-based DFE Pharma. Vaccine majors like Biological E and Indian Immunologicals recently announced expansion in Genome Valley with a cumulative investment of 2,500 crores, adding more than 5 billion doses of manufacturing capacity to this cluster. Hetero has also announced an investment of rupees 750 crores to establish a sterile pharmaceutical and biologics manufacturing unit, creating more than 2,000 new jobs. Yesterday, I had the privilege of announcing entry of global major Roche to the vibrant life sciences ecosystem of Hyderabad. All of these, brilliant stakeholders coming together will only ensure that the Hyderabad life sciences ecosystem continues to remain an extremely important hub in the entire world. All these large majors and startups and innovative companies will also engage in cutting-edge digital R&D work from the city and plan to grow to about 100 highly skilled people shortly, and this is Roche. This has been a phenomenal growth journey indeed, and a deeply satisfying one with enormous economic potential and job potential for the people of Telangana and for our country, India. The $100 billion vision that we had set for ourselves looks achievable. This is by 2030, much ahead of our targeted timeline. I would like to congratulate my team for their commitment and efforts, and especially the whole COVID pandemic has shown the world how important a cluster Hyderabad is, with manufacturing more than 1/3 of global vaccines just from this one city and one cluster. With the 20th edition of BioAsia right around the corner,
in February 3rd week, I sincerely hope all of Genome Valley will contribute and make it a grand success. And furthermore, I hope that Genome Valley continues the upward trajectory in imparting impetus to the growth of biopharmaceutical industry. Once again, would like to congratulate all the stakeholders in Genome Valley and to all of those who are present here. Thank you. Jai Telangana. मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी टी अंजैया की 36वीं बरसी के मौके पर आज हैदराबाद के लुम्बिनी पार्क में वाक़ उनके मुजस्समे पर कांग्रेस कायदीन ने खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर पुन्नारा लक्ष्मैया, वी हनुमंतराव, अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन व कारकुनान ने टी अंजैया की खिदमात को याद करते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। ఇగో ఇది ఆయన పరిపాలన. దురదృష్టం, దౌర్భాగ్యం. చెప్పింది చేయడు, చేసేది చెప్పడు, ఎందుకు పోయిండు చెప్పడు, ఆడికి పోయి రాష్ట్రానికి కావాల్సిన విషయాలు చెప్పడు. ఏమన్నంటే ఏదో టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ ఇంకేదో అంటాడు కదా, దాని మీద కాలయాపన. ఇగో ఇది పరిపాలన. ఇది పరిపాలన అంటారా? ఇది ప్రజాహితం అంటారా? రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుందంటారా? సొంత లాభం కోసం, సొంత ఆర్జన కోసం, సొంత పేరు కోసం చేసే ప్రక్రియ రాజకీయాలలో చేస్తున్నది కేసీఆర్ గారు. ఇది చెప్పక తప్పదు. ప్రజలు తప్పనిసరిగా గుర్తిస్తున్నారు. చివరికి పెద్ద పెద్దోళ్ళకు గుణపటాలి. అది రావణాసురుడు అత్యంత పెద్ద శివభక్తుడయా ప్రపంచంలో, విశ్వంగా. చరిత్ర ఏం చెప్పిందో తెలుసు. అందుకోసం ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకు బుద్ధి చెప్పేది కూడా ఈ ప్రజలే. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో ఓట్లు దండుకొని ప్రజల మీద పెత్తనం సాగించి నిరంకుశ పరిపాలన చేస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकनी असेंबली कौसर महिउद्दीन ने आज पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने आसिफ नगर मंडल के तहत 180 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स खवातीन के हवाले किए। इस दौरान आसिफ नगर MRO, मजलिस कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। कारवान आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक के 120 चेक्स को दारुस्सलाम पर दिया गया और साथ ही साथ कल्याण लक्ष्मी के भी चेक्स को दिया गया। कुल जमा मिलाकर 190 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों को दिया गया। और आज के प्रोग्राम के अंदर कारवान के जो की नुमाइंदा डॉक्टर जनाब नौरुल फरान साहब, कारवान के सीनियर इब्तदाई के सदर जनाब मदर साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब, जनाब खलील साहब, जनाब समी साहब, दीगर और आसिफ नगर मंडल के तमाम अहदेदार इस प्रोग्राम में शामिल थे। और इंशाअल्लाह करीब में शेखपेट मंडल के और गुरगुंडा मंडल शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के इंशाअल्लाह करीब में दिया जाएगा। इस मीडिया के ज़रिए मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको या मेरे कारकर्दों को, मेरी जमात के सदर मोतमदीन को बताइए। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल पर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमें आ जाएगा। शुक्रिया। कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने जीएचएमसी हदूद में लगाए गए तमाम फ्लेक्सीज हटाने का मुतालबा करते हुए जीएचएमसी के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। उनका कहना था कि हुक्मरान जमात टीआरएस और अपोजिशन बीजेपी ने अपने सीनियर कायदीन के इस्तकबाल के लिए शहर में फ्लेक्सी लगाए हैं, जबकि कांग्रेस ने नारायणगुड़ा पर जो फ्लेक्सी लगाया था सिर्फ उसे ही बल्दिया की जानिब से हटा दिया गया। कांग्रेस कायदीन ने इस ज़िमन में जीएचएमसी कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के मुतालिक फ्लेक्सी लगाने की इजाज़त देने के लिए एक मेमोरेंडम हवाले किया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव, टीपीसीसी अखिलती चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल और दीगर मौजूद थे। ప్రోగ్రాం రాకముందే మేము గెలుచుకోవద్దు. సోనియా గాంధీ తీసేస్తున్నారు, రాహుల్ గాంధీ తీసేస్తే ఏమిటి మీ ఆలోచన? ప్రభుత్వానికి భయపెట్టుకుందా? ఎందుకంటే గతంలో రాజీవ్ గాంధీ గారు సద్భావన కూర్చోమ్మా. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर कने वी हनुमंतराव, साबिका एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी और पीसीसी के सभी कार्यकर्ता लोग और गोशामहल के श्याम सिंह, श्रीधर गौड़, श्रीनिवास, हम सब इनके सदारत में यहाँ पर धरना हुआ। हैदराबाद में केटीआर साहब का बर्थडे हो तो फ्लेक्सला बनते, सीएम का बर्थडे हो तो फ्लेक्सा बनते, अमित शाह है तो फ्लेक्स बोर्डा बनते, फिर उन्हें जाने के बाद भी नहीं निकालते। हम भारत जोड़ो फ्लेक्स बोर्ड नारायणगढ़ ब्रिज के ऊपर बनो तो वो किसको भी डिस्टर्बेंस नहीं है, आके म्यूनसिपल वाले निकाल दिए।
अब सब लोग आकर यहाँ पर म्यूनसिपल ऑफिस कर रहे, धरना कर रहे। म्यूनसिपल ऑफिस के ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर जी आके हमको आश्वासन और जो है जिम्मेदारी के साथ बोले अगली दफ़ा आपका एक फ्लेक्स बोर्ड भी नहीं निकालते बोल रहे। म्यूनसिपल ऑफिस और मिनिस्टर साहब KTR के मकान को भी घेराव करते हैं। मेरा नाम राम शेट्टी नरेंद्र है, कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान हूँ। श्याम सिंह नगर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, श्रीधर गौड़ PCC सेक्रेटरी, MR श्रीनिवास साबका कारपोरेटर। काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू जर्नलिस्ट तंजीम की जानिब से आज तेलंगाना उर्दू एकेडमी वाक़ हज हाउस नामपल्ली में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा मुहिउद्दीन की क़यादत में एहतजाजियों ने तेलंगाना हुकूमत पर उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उर्दू सहाफ़ियों को दी जाने वाली ग्रांट और तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी को सही तरीके से कारआमद बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि उर्दू एकेडमी के चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद से चेयरमैन अपनी सीट पर दस्तयाब नहीं हैं। उन्होंने रियासत में उर्दू की बका के लिए मुनासिब इक़दाम का CM KCR से मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन अब्दुल वाजिद। आज हमने उर्दू एकेडमी पे धरना मुनक़द किया और हमारा अहम मकसद ये था कि उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, उर्दू एकेडमी की कोई भी जो है ना स्कीमात मुकम्मल नहीं की जा रही हैं और हम जो है ना आज इसी वजह से जो है ना आज हज हाउस में जो है ना बरहमी का इजहार किया और जो है ना हुकूमत को वाज़े किया कि जो है ना अगर इस उर्दू एकेडमी को जो है ना के फ़ंड्स अगर रिलीज़ ना करें तो हम और भी आगे धरने एहतजाज वगैरह करेंगे। लिहाजा जो है हमको जो तकालीफ़ है वो जल्द से जल्द पूरे किया जाए और उर्दू एकेडमी का जो 8 करोड़ बजट है वो बजट नाकाफ़ी है, जो 5 करोड़ भी ख़र्च नहीं किया जा रहा है और उल्टा हुकूमत को वापस कर दिया जा रहा है। लिहाजा हम डिमांड करते हैं कि जो है उर्दू एकेडमी का बजट बढ़ाएं और जो है ना तमाम स्कीमों को बहाल करें और खुसूसन माइनॉरिटी खुसूसन उर्दू मीडिया को प्रिंट मीडिया को जो ग्रांट दिया जाता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो ग्रांट दिया जाता था वो नहीं दिया जा रहा और वो जल्द से जल्द बहाल करें और जो है अगर नहीं होगा तो इसके फिर हम जो है ना आगे इसकी हम के हिसाब से कौन है जिम्मेदार इसके ज़िम्मेदार जो है ना हमारे को यहाँ उर्दू एकेडमी में हम जब भी ज़िम्मेदार से मुलाकात करते थे, गौस साहब जो थे उनसे हम मुलाकात करते थे तो उन्होंने ये बताते थे कि हुकूमत हमको जो है ना पैसा नहीं दे रही, इसलिए हम जो है ये सब काम नहीं कर रहे, हुकूमत पे ब्लेम करते थे। तो फिर हम क्या करें, माइनॉरिटी मिनिस्टर उपला ईश्वर साहब से मुलाकात किए और उनको हमारे तमाम तकलीफ़ें बताए तो भी उन्होंने भी जो है ना कोई काम नहीं करे और बेबसी और लाचारी का इजहार करे। फिर उसके बाद में हम क्या करें, फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव साहब से भी मिल के अब ख़ास तौर से हम तमाम जो है ना मसाइल जो है ना आपके सामने रखे तो उन्होंने भी हमको वादा किया, लेकिन वो भी बेबसी का और लाचारी का इजहार करे तो हम आखिर जाए तो कहाँ जाएं, आखिर कैसा जो है ना इस उर्दू के साथ इंसाफ होगा। हमने बड़ी कोशिशों के बाद में सोच फिक्र करने के बाद में जो है ना ये धरना किया। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे डिमांड्स पूरे नहीं होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम एक बड़ी मुहिम चलाएंगे और तमाम पूरे स्टेट के अजलाओं से लेके और तमाम जर्नलिस्टों को लेके जो है ना हम बड़ी मुहिम का आगाज़ करेंगे। कुतुबुल्लाहपुर नंदानगर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के सदर कार्तिक गौड़ की क़यादत में एक वफ़द ने आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान से मुलाकात की। उन्होंने आशुर खाने के मौजूदा मुतवल्ली के बारे में एक मेमोरेंडम हवाले किया जो आशुर खाने की ज़मीन पर बिना इजाज़त इमारत की तामीर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुतवल्ली के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया, जिस पर चेयरमैन मसीहुल्लाह खान ने मुमकिन कार्रवाई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर नंदानगर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट बी वीरेश, मोहम्मद इब्राहिम के अलावा दीगर जिम्मेदारान और अरकान मौजूद थे। कुतुबुल्लाहपुर शिलारगुड़ा नंदानगर से आए हैं, अपने चेयरमैन साहब को एक मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। अपने बस्ती में ख्वाजा आशिर खाना बोल के है, 80 साल से हमारे पुराने दादों के साथ में हम पूरे हिंदू मुसलमान भाई बोल के वो आशिर खाना में हलम बिठा के जुलूस करते, वो पूरा हिंदू ज़्यादा करते। वो जगह में अपने पंतुल के जैसा एक आदमी को आशिर खान मुतावाली साहब को लगाए थे। वो मुतावाली साहब क्या कर रहे, वो धोखाबाजी का काम करके वो जगह को कब्जा करके बिल्डिंग बनाने चाह रहे। वो बिल्डिंग वहाँ नहीं बनाना, वो ज़मीन है आशिर खाना का ज़मीन है, वो ज़मीन को बचाओ, आशिर खाना को सेव करो। अपने हिंदू मुसलमान भाई बोल के हम इतना दूर आए थे, वो अपने को
सही जवाब मिला चेयरमैन साहब से, उसको शुक्रिया वादा कर रहा हूँ। मुतवल्ली का साहब नाम है, इसके घोष पास आए हुए उन्हें। आज 1970 में बहुत गड़बड़ करा, गेट लगा तुम बोले तो एसीपी गोवर्धन साहब था, सीआई शंकर रेड्डी साहब था, उसके ऊपर केस भी हुआ 2017 में गड़बड़ हुआ था। 2019 में इधर वक्फ बोर्ड को आके उसका गज 4,000 गज था, 40,000 गज था, 4,000 गज था। वो गज में क्या करा है उन्हें, गेजेट में वक्फ बोर्ड क्या दिखा रहा है बोले तो 360 गज दिखा रहा। वो बहुत धोखाबाजी बात है। वक्फ बोर्ड को जाओ, किधर तो भी जाओ, पुलिस जाओ, किधर तो भी, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। वो ज़मीन पूरा मैच है बोल के उन्हें ऐसा कर रहा है, हिंदू मुस्लिम को गड़बड़ कराने के लिए कोशिश कर रहा। उसको ज़रा एक्शन लेना बोल के चेयरमैन साहब को मिलने के लिए आए वक्फ बोर्ड को। चेयरमैन साहब अच्छी जवाब दिया, उसको धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरसिंह राव है। आदिलाबाद बीजेपी पार्टी कायद वो NRI कंदी सुरेश ने अपने प्रजा सेवा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CM KCR और मुकामी रुकन असेंबली जोगू रमना को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कंदी श्रीनिवास ने दावा किया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में आदिलाबाद हल्के पर जाफरानी पार्टी का परचम लहराएगा और जोगू रमना की ख़ानदानी हुक्मरानी का खात्मा होगा। उन्होंने रुकन असेंबली पर शहर की तरक्की, SC ST BC तबक़ात की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया और उन्हें अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का पुरजोर मुतालबा भी किया। సింహంలాగా అగ్గి బరాటలాగా పోరాట యోధుడై మీ కోటలు కూలుస్తాడు రామన్న. గజకర్ణ గోకర్ణ టక్కు టమార విద్యలు ప్రదర్శించి 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఆదిలాబాద్ ప్రజల్ని పచ్చి మోసం చేసిండ్రు, మీరు దగా చేసిండ్రు. మీరు ఆదిలాబాద్ లో బేతాళమంతుడు ఎవరంటే జోగురామన్ అని అంటున్నారు. ఆదిలాబాద్ లో పాపాల భైరవుడు ఎవరంటే జోగురామన్ అని అంటున్నారు. జోగురామన్న, మరి నువ్వు ప్రజలకు సమాధానం చెప్పి రాజీనామా చేస్తారా మీరు లేదా? మా BC బంధులు, SC బంధు, ST బంధు రావాలంటే మీరు రాజీనామా చేయడం ఒక్కడే శరణ్యం। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना रियासत के सरकारी स्कूलों में मना उरू मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और बुनियादी सहूलतों की दस्तियाबी को यकीनी बनाया गया। ताहम ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में वाक़ ज़िला परिषद सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल अभी भी अरबाब मजाज और सरकारी तालीमी हुक्काम की तवज्जो का मुंतज़िर है। यहाँ की तालिबात को स्कूल में ना तो शफ़ाफ पीने का पानी दस्तियाब है, ना ही रफ़ा हाजत के लिए मुनासिब वॉशरूम और ना ही मुनासिब मिड डे मील। वहीं स्कूल अहाते में सफाई का काम भी मुनासिब तरीक़े से नहीं किया जा रहा, जिससे इस स्कूल में पढ़ने वाली तालिबात को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। वाज़ेह हो कि रियासत के सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए फ़ंड्स की इजराई और स्टूडेंट्स को असरी तालीम फराहम करने के लिए CM KCR की जानिब से मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। ताहम रियासत में अब भी ऐसे स्कूल्स हैं जहां के स्टूडेंट्स को बुनियादी सहूलतें भी दस्तियाब नहीं हैं। भैंसा में BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी और कैमरामैन प्रकाश ने भैंसा ज़िला परिषद सेकेंडरी स्कूल के गर्ल्स स्टूडेंट्स से बात की तो उन्होंने इस स्कूल में पेश आ रही दुश्वारियों का जिक्र करते हुए हुकूमत से बुनियादी सहूलतों की फरहमी का मुतालबा किया। हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर की। जो भैंसा शहर में लेडीज़ गर्ल्स स्कूल है, वहाँ की इतनी तबाही है। वो स्कूल में ना वॉशरूम सही है, ना साफ़ सफाई है, ना पानी, ना बच्चों के लिए पीने का पानी भी नहीं है। इतनी बच्चे यहाँ के इतनी तकलीफ़ का सामना कर रहे जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आइए हम मौजूद है 7th क्लास में, ऐसे ही हमारे सामने गर्ल्स है जो उनसे मालूमात करेंगे कि इस स्कूल में क्या क्या परेशानी का बच्चों को सामना करना पड़ा। आइए बात करेंगे बच्चों से। बेटे आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। बेटे बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम है स्कूल में? हमको पानी नहीं है, वॉशरूम सही नहीं है और हमको साफ़ सफाई नहीं है। हमारे उर्दू सर नहीं आ रहे, हमको उर्दू नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। हमको
बोलिए बेटा, डरो मत, बोलिए, बेझिझक बोलिए, रहेगी। और आप खाना अच्छा नहीं पक रहा, कच्चा पक्का जी और सालन पूरे पतले। जी जी जी, और बोलिए। रोज आलूश पका रहे, पकाए तो गोलिश पका, गोबिश पका रहे, जी, एक साव नहीं खाए जा रहे। ऐसा ही। और बेटे आपका नाम क्या है? मदिया तज़ीन। बेटे आप बोलिए, क्या क्या आपको क्या क्या तकलीफ है, बोलिए। पानी से नहीं आ रहा, टीचर्स के वास्ते फिल्टर वाटर, हम लोग के वास्ते नला का पानी। क्या हम लोग पी सकते हो पानी? हाथों वो धोने का पानी वो रहता, हम लोग पी सकते पानी वो। और ये फन आ रहा से कहाँ जा रहा सब? ये फंड्स आपके स्कूल में, जो आपके स्कूल को जो फंड्स आ रहा वो कहाँ जा रहा बोल के पूछ रहे। हाँ, ये बात तो आप करेक्ट पूछे कि स्कूल का फंड कहाँ जा रहा। आपको क्या क्या तकलीफ हो, कि आपको किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ा, ये बोलिए आप। हमारे स्कूल में साफ सफाई नहीं है, हम लोग जाना किधर, गर्ल्स है, वॉशरूम किधर जाना, वो साफ भी नहीं है, और क्लासेस में साफ सफाई नहीं है। और सर बेटे आपको और चीज़ की क्या तकलीफ है? हम लोग हाथ धोने जाते और कचरा उठाने लगाते ग्राउंड में का। हाँ, इनारे के ग्राउंड में का कचरा उठाने लगाते हम लोग। ये थे स्टूडेंट जो आपको काफ़ी अच्छा बताएं कि आप देख रहे हैं कि बच्चों को क्या क्या मुसीबत का सामना करना पड़ा, और बच्चे यहाँ स्टूडेंट होकर सवाल कर रहे हैं कि इस स्कूल का फंड कहाँ जा रहा। ये स्कूल को कोई देखने वाला नहीं है, ये स्कूल को कोई तवज्जो करने वाला नहीं है। आप उनके मुंह से सुन चुके हैं, और ये आपको जानकर बेइंतहा अफसोस होगा कि इस गस स्कूल में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। मलकाजगिरी मौलाली डिवीज़न केसीआर कॉलोनी में मर्री अरुंधति हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम मुफ्त तिब्बी कैंप शुरू किया गया। इस प्रोग्राम का आगाज़ मुफ्त मेडिकल कैंप के इंचार्ज मर्री राजशेखर रेड्डी ने किया। इस मौके पर लोगों के मुफ्त टेस्ट करते हुए शुगर, BP और दीगर बीमारियों की मुफ्त दवाइयाँ फराहम की गई। इस कैंप से कसीर तादाद में मुकामी लोगों ने इस्तेफादा करते हुए हॉस्पिटल के अमले का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में मेडशल मलकाजगिरी ज़िले के NSS नोडल ऑफिसर श्री N उदय रंजन गौड़, मोहम्मद फ़हीमुद्दीन, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अली, करुणाकर, मकसद मदद के बानी और दीगर ने शिरकत की। ఇక్కడ మన మౌలాలిలోని కేసీఆర్ బస్తీలో మర్రి అరుంధతి హాస్పిటల్ తరపున ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సహకరించినటువంటి మా మసద్ ఫౌండర్ ఫహీం భాయ్కి, అలాగే అజం భాయ్కి, అలాగే అసల్ భాయ్కి, సో వీళ్ళందరి సహకారంతో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క హాస్పిటల్లో మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, TRS మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉచితంగా సేవలు చేస్తూ పేద ప్రజలకు వాళ్ళకు ఉచితంగా డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టులు కానీ లేదంటే సర్జరీలు కానీ అన్నీ అక్కడ హాస్పిటల్లో ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు కూడా 1200 సర్జరీలు కూడా ఫ్రీగా చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు కూడా మౌలాలిలో ఒక క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ యొక్క క్యాంప్లో కూడా ఇప్పటివరకు చూస్తే దాదాపు 100 పైన ఇప్పటివరకు వచ్చారు. అలాగే ఈ క్యాంప్ అయిపోయేలోపు దగ్గర ఒక 200 మంది కూడా ఈ క్యాంప్ను ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ క్యాంప్లో భాగంగా మా స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు వాళ్ళకు BP, షుగర్ టెస్ట్ చేసి, జనరల్ చెకప్ చేసి, అట్లాగే వాళ్ళకు ఫ్రీగా మెడిసిన్స్ కూడా అందడం జరుగుతుంది. సో ఎవరికైతే టెస్టులు ఇంకా సర్జరీ అవసరమైతాయో రేపు మళ్ళీ మేము బస్సు పంపిస్తాం. ఆ బస్సులో వాళ్ళు వస్తే టెస్టులు అని వేయించుకోవచ్చు, డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు ఫ్రీగా. మళ్ళీ ఆ బస్సు వాళ్ళని ఇక్కడ దింపేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మౌలాలి డివిజన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క సౌకర్యాన్ని, మర్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అందిస్తున్న ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు ఫ్రీగా టెస్టులు, సర్జరీలు కూడా ఏమున్నా కూడా ఏ రకమైన సర్జరీలు కూడా అన్ని ఫ్రీగా చేయించుకోవచ్చు అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ క్యాంప్ పెట్టడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఫహీం భాయ్కి, అలాగే అఫ్జల్ భాయ్కి, ఆషం భాయ్కి, అలాగే కరుణాకర్ అన్నకి, అందరికీ కూడా మేము మర్రి అరుంధతి హాస్పిటల్ తర్వాత ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. आदिलाबाद CITU के ज़िला सेक्रेटरी किरण ने आशा वर्कर्स को कम से कम उजरत अदा करने का मुतालबा करते हुए आज एहतजाज किया। आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू अंजुमन के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे में आशा वर्कर्स के मसाइल हल करने का मुतालबा किया गया। उन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों पर उजरत के मामले में आशा वर्कर्स के साथ गैर मुनसिफाना सलूक करने का इल्ज़ाम लगाया और मरकज़ की तरफ से 16 माह के कोरोना रिस्क अलाउंस के बकायाजात की फौरी हिजराई पर जोर दिया। इस मौके पर CITU की असिस्टेंट सेक्रेटरी आशना, आशा कारकुन शोभा, सुनीता, सुजाता, श्वेता, राधा और दीगर मौजूद थे। మోయిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ స్కూటర్ డబ్బాలను మోయించే పనిని ఆశా కార్యకర్తలకు అప్పచెప్పకూడదనేది మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరోవైపు జిల్లా కేంద్రంలో రిమ్స్
ప్రధాన ఆసుపత్రిలో ఆశా కార్యకర్తలు ఏ సందర్భంలోనైనా రాత్రి వేళల్లోనైనా పేషెంట్లను తీసుకొస్తే వాళ్ళకు వెయిటింగ్ చేయడానికి ఒక రూమ్ను కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి వెంటనే జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న ప్రధాన ఆసుపత్రుల్లో, మండల ఆసుపత్రుల్లో ఆశా కార్యకర్తలకు వెయిటింగ్ రూమ్లు ఇవ్వాలనేది మేము డిమాండ్ చేస్తాను. అదేవిధంగా ప్రతి నెల హరీష్ రావు గారు మీటింగ్ పెడతా ఉన్నారు. మీటింగ్ సమయాన్ని కూడా మార్చాలి. ఉదయం పూట మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలనేది మేము డిమాండ్ చేస్తాను. అదే రకంగా ఆశాలకు ఈరోజు టీఏడీఏ బిల్లులు ప్రభుత్వం ఇవ్వటం లేదు. शहर हैदराबाद की आसिफ नगर पुलिस ने इस माह की 16 तारीख को मेहदीपट्टनम दिलशाद कॉलोनी में पेश आए रन विजय ब्रिज बिहारी के कत्ल के मामले में राजकुमार नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया जब्त कर ली। एसीपी शिवमूर्ति ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई है। और मरेसो वाले का नाम रन विजय ब्रिज बारी सिंह, दोनों भी करीब 50 साल का उम्र वाले हैं। दोनों भी लेबर काम करते, पेंटिंग में लेबर काम करते। ये दोनों भी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी वाले हैं। ये दोनों को राजेश सहानी बोल के एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेके आए उसको, ये दोनों को। ये काम करने के बाद रात में पूरा 8-10 जने मिलके एक ही रूम में रहते मुरादनगर में। ये जो 16 तारीख के दिन रात में 9 बजे के बाद ये खाना पकाने में वो इश्यू पे लड़ाई हुआ, दोनों के बीच में बहस हुआ, तुम पकाना बोल के। उसमें जब तक ये लोग पीके भी थे, वो बहस होने के बाद ये जो राजकुमार ये रणविजय ब्रिजबारी सिंह को वहाँ पे लकड़ी लेके मारने के बाद फोरहेड पे उसको मार लगने के बाद ये उसका बाकी का रूममेट्स और ये राजेश सहानी लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसके साथ में ये मारे 100 आदमी भी उसको मेडिकल हॉस्पिटल गच्चीबौली को लेके गए। तब तक डॉक्टर्स क्या बोले तो डिक्लेयर्ड हिम ब्रॉड डेड। इन्हों तब तक मर गया बोलते। मरने के बाद इन्हों वहाँ से भाग गए। जब डर हो के राजकुमार वहाँ से भाग गए। रात में भाग जाने के बाद ये पुलिस वाले को इन कंप्लेंट दिया, राजेश साहनी उसका जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। कंप्लेंट देने के बाद वो टाइम पे नॉर्थ यहाँ पे देखे तो कहीं भी नहीं है अक्यूज, वहाँ पे रहने का चांस भी नहीं है। रिसेंटली आए सो है जो कोई भी पहचान का नहीं है, कहीं भी रहने का चांस नहीं है, कहीं भी शेल्टर कोई देने वाले भी नहीं है उसको। इसलिए फिर नॉर्थ इंडिया को जाने का चांस है। नॉर्थ इंडिया को वो टाइम पे नॉर्थ बाउंड ट्रेन्स क्या है बोल के देखे तो नामपल्ली से दक्षिण एक्सप्रेस 11 के बाद निकला। इसलिए हमारे इंस्पेक्टर डीआई साहब और क्राइम टीम पूरा मिलके जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को उसका फ़ोटो लेके उसका रूममेट्स फ़ोटो लेके उसमें ऑनलाइन पे शेयर करे तो ये जो मर्डर करे सो आदमी कल सुबह नागपुर में जनरल बोगी में दक्षिण एक्सप्रेस जनरल बोगी में पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद पुलिस वाले आसिफ नगर को इन्फॉर्म करे तो आसिफ नगर से एक टीम जाके उसको पकड़ के यहाँ पे लाके आज सुबह उसको ऑफिशियली अरेस्ट करे। उसको कल जाके उसको अप्रहेंड करे, आज अरेस्ट करे इसको। वो लोग भी थे नहीं, तब तक सब धन बोल के मार दिया, मारता बोल के ये लोग भी नहीं मारा। एक ही मार मारा वो जोर से मारा। आपका नहीं इसके नहीं बताएंगे, मगर वो चीज़ वो करते वो उसका शर्ट भी। 21वीं सदी तरक्की याफ्ता दौर जदीद में भी लोग काला जादू टोना और तोहम परस्ती पर यकीन रखते हैं। इसी के चलते 14 अक्टूबर को उप्पल में एक पुजारी बाप बेटे का कत्ल बेदर्दी से कर दिया गया था। रच्चकुंडा पुलिस ने इस दोहरे कत्ल के मुअम्मे को हल करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद 3 अफराद मफरूर बताए गए हैं। रच्चकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने इंकशाफ किया कि एसआई की नौकरी पाने के लिए करवाई गई पूजा के रायगा होने पर पूजा कराने वाले शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुजारी बाप और बेटे का कत्ल कर दिया। उन्होंने बताया कि ये पुजारी काला जादू भी किया करता था। रच्चकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने आवाम को जादू टोना अमलियात से दूर रहने का मशवरा दिया। 14 अक्टूबर के सुबह उप्पल पुलिस स्टेशन के साई हनुमान नगर में एक डबल मर्डर केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें फादर और सन को 2 व्यक्ति ने आके उनके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया था। वो केस हमारे डीसीपी मलकाजगिरी, एसीपी एसएचओ उप्पल के टीम ने और हमारे एसओटी के टीम ने डिटेक्ट किया है। इसमें 5 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है। इसमें जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है विनय एलियास विनय रेड्डी, उसका और वो जो मर गया प्रिस्ट
जो ब्लैक मैजिक सॉर्सरी का भी काम करता था करके अभी हमें मालूम हुआ है, जिसका 75 उम्र है। इसका पहले से परिचय था। 2016 में जब विनय ने सब इंस्पेक्टर की एग्जाम लिखी तो कुछ पूजा करने के लिए 6 लाख रुपया ये नरसिम्हा ने उससे लिए थे, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। होने के बाद पैसा वापस मांगा, पैसा नहीं मिला उससे करके उसने वही ग्रजेस से उसको पीछे पड़ा है। और बीच में जो कुछ इसके साथ में जो रोड एक्सीडेंट हुआ, कुछ क्रिमिनल केस में उसको अरेस्ट किया गया, इसके लिए भी यही नरसिम्हा कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है करके ये दिल में रख के वो ग्रज से ही ये विनय ने अपना फ्रेंड बालकृष्णा और 3 लोग जगदीश गौड़, श्याम और राम, इनको साथ लेके ये मर्डर का पूरा प्लानिंग करके ये नरसिम्हा के ऊपर फर्स्ट 14 तारीख को सुबह इन्होंने अटैक किया, उसको मार गिराया। और जब वो नरसिम्हा चिल्ला रहा था तो उसका बच्चा ऊपर से श्रीनिवास करके भाग के आया, उसके ऊपर भी अटैक करके उसका भी इन लोगों ने मर्डर किया है। 2 मर्डर इन लोगों ने किए हैं। इसमें अभी 5 लोग हम उनका अरेस्ट किया है, उनको अभी हम हिरासत में लेके उनको हम जेल भेज रहे हैं। जाली दस्तावेजात, फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन फ्रॉड में मुलविस गैंग को रचकोंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस टोली से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद को हयातनगर और एलबी नगर एसओटी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजिमीन के पास से 4 करोड़ रुपए मालियत के फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, फेक आधार कार्ड, 1 कार और 9 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। रचकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक पेट्रोल पंप पर कल एक नौजवान ने पिस्तल लेकर हंगामा आराई की। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरा मेन रोड पर वाक़ इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर एक नौजवान मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने आया और 500 रुपये का पेट्रोल भरवाने के बाद उसने रकम अदा नहीं की और ऑनलाइन भी पेमेंट अदा न कर पाने पर पेट्रोल पंप इंतज़ामिया ने उसे किसी के ज़रिए रकम मंगवाने को कहा, जिस पर उसने अपने दोस्त को तलब किया और 2 नौजवान पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। उनमें से एक के पास पिस्टल थी। बातचीत के दौरान वो हंगामाराई करते हुए तोड़फोड़ करने लगे। पेट्रोल पंप इंतज़ामिया ने फौरी इस बात की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दीगर 2 नौजवान फरार हो गए हैं। उनकी तलाश जारी है। 1730-1800 आवर्स के बीच में एक आदमी पुराना पुल से नज़दीक एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने के एक आदमी एक्टिवा मोटरसाइकिल में आके 500 का पेट्रोल डाल के पैसा नहीं दिए तो पेट्रोल पंप वाला वर्कर्स पूछे पैसे दे बोल के, पैसे नहीं लिए। ये बीच में दोनों के बीच में आर्गुमेंट चल रहा। वो टाइम पे फ़ोन करके 2 आदमी की बुलाए। 2 आदमी आए। इसका एक आदमी एक पिस्टल टाइप एक बता के उनको डर दिए। बाद में दोनों मिलके ये HP इंडियन ऑयल पंप का ऑफिस का ग्लास आईना तोड़ दिया। जो ये पेट्रोल पंप वाला स्टाफ उन्हें रोकने के गए तो उनको भी मारे। बाद में इन्होंने डर के पुलिस स्टेशन के सामने भाग के आए। बाद में पुलिस जाके उसमें एक आदमी की पकड़े, 2 आदमी चले गए और उसको आगे आइडेंटिफाई करा। वो कोनो टाई पिस्टल बताए, उन्होंने नाम यूसुफ है, उन्होंने चिंतलमेट का है, उन्होंने आइडेंटिफाई हुआ। उसके साथ टाई पिस्टल है, इंक्वायरी में मालूम हुआ। उसको पकड़ने के बाद पूरा तो इसके बारे में एक केस कर दिया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। सर तीसरा आदमी कौन है सर इसमें? जो तीसरा उन्होंने इसमें मालूम हुआ, उसको भी अरेस्ट करने को कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाला इसमें? रेजिडेंस नहीं मालूम है, मालूम कर लेते हैं इससे इंट्रोगेशन कर। 500 रुपये का जो पेट्रोल लगाया, जो बहस किया, वो कहाँ रहता है, उसका क्या इंटेंशन है? वो इफ्तार है उसका नाम। उन्होंने इंजन बौली फलकनामा में रहता। उन्होंने पी के आके 500 का पेट्रोल डाले, पैसे नहीं दिए तो आर्गुमेंट चला। उसके बाद तो इन्होंने फ़ोन करके दूसरा 2 आदमी की फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने पी के गाड़ी पे आ गए। हाँ, निशा के पी के आए। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने बंजारा हिल्स पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस आदि मुजरिम काशिफ को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से जुमला मालियत 2 लाख रुपए के 5 मोटरसाइकिलें जब्त कर लिए गए। बताया जा रहा है कि मुलजिम ने हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में 5 मोटरसाइकिलों की चोरी की है।
ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ मस्जिद आफरीन अब्दुल्ला कॉलोनी में 22 अक्टूबर हफ्ते के रोज़ बाद नमाज इशा जलसा बउनवान मौजूदा हालात में सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और इल्म व उलमा की अहमियत व इफ़ादियत मुनक़्क़िद किया जा रहा है। अहलियान मोहल्ला आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, 22 अक्टूबर बाद नमाज इशा बमकाम मस्जिद आफरीन अब्दुल्ला कॉलोनी मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास कोया गुट्टा बांसवाड़ा में एक अदीम शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। हर साल रबीउल अव्वल के मौके पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मुनक्किद होता है और मेहमान तशरीफ़ लाते हैं और 12 साल में एक मरतबा ज़रूर भी ज़रूर PM मुजम्मिल साहब अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास तशरीफ़ लाते हैं। आप हजरात को मालूम है बयान कैसा रहता है, तो इस जलसे में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ आलिम दीन शेर कर्नाटक हजरत मौलाना PM मुजम्मिल साहब नक्शबंदी वाला जाही दामन बरकातुम का कीमती बयान होगा। ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम भी है। अब आप हजरात से अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि माँ दोस्त व अहबाब इस जलसे में शिरकत फरमाएं और अपनी माओ बहनों को भी इस जलसे में रवाना फरमाएं। 22 अक्टूबर बाद नमाज इशा जलसे में शिरकत की गुजारिश की जाती है। 22 अक्टूबर बाद नमाज इशा जलसे में शिरकत की गुजारिश की जाती है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई, तेलंगाना के वजीर KTR ने ट्वीट के जरिए जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल, इसे बीजेपी के मियारात की एक और गिरावट करार दिया। वजीर KTR ने मजमूई तौर पर 1100 करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट्स का रखा संगे बुनियाद, जिनोमी वैली में तरक्की के तीसरे मरहले का किया ऐलान। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर T अंजया की 36वीं बरसी, कांग्रेस कायदीन ने हैदराबाद में वाक़ उनके मुजस्समे पर पेश किया खिराज अक़ीदत। भैंसा के जिला परिषद सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में बुनियादी सहूलतों का फुक़दान, तालिबात ने रियासती हुकूमत से सहूलतों की फरहमी का किया मुतालबा। उप्पल में पेश आए एक पुजारी बाप और बेटे के दोहरे कत्ल का मुअम्मा हल, राचाकोंडा पुलिस ने किया 5 अफराद को गिरफ्तार। फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन का मामला, राचाकोंडा पुलिस ने गैंग के 5 अफराद को किया गिरफ्तार। फेक डॉक्यूमेंट्स, स्टैम्प पेपर्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स और दीगर अशिया जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।